SRS, यानी कि only and only for the purpose of management. It is not assurance. No third party will rely on it. For those, there are two important standards. One is AUP, agreed upon procedures. नाम से ही मालूम पड़ता है मैंने और मैनेजमेंट ने कोई प्रोसीजर अग्री किए, उसके बेसिस पे मैंने रिपोर्ट दिया, उसको बोलते हैं SRS 4400. मैं इसका एग्जांपल देता हूं, एंड प्लीज आई एम श्योर इन योर प्रोफेशनल लाइफ मेनी टाइम्स यू वुड हैव गिवन सर्टेन स्पेशल सर्टिफिकेट. हम क्या करते हैं, बिकॉज अवेयरनेस ऑफ स्टैंडर्ड्स इज नॉट देयर, हम सभी चीज को ऑडिट के अलावा सर्टिफिकेट का नाम दे देते हैं और सर्टिफिकेट बना के उसको रिपोर्ट दे देते हैं. प्लीज, there are multiple occasions that you could have encountered where the management needs some report or certificate from you. It is actually not a certificate, it is covered by a standard. Example है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन वेरिफिकेशन करना है मैनेजमेंट के पर्पस के लिए, उसका कोई फॉरेन कोलैबोरेशन है और वो बोलता है कि भैया इसने ये काम इस एग्रीमेंट के हिसाब से किया या नहीं किया, या उसकी कोई पॉलिसी थी और मैनेजमेंट बोलता है आप ये ब्रांच में जाके जरा चेक करिए कि हमारी ये पॉलिसी के हिसाब से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. हम सब ने कभी ना कभी ऐसे टाइप के काम किए होंगे. उन सभी कामों में what you can use is the SRS 4400, agreed upon procedures. Management will say you please do A, B, C, D. In your report you say मैंने A, B, C, D किया, करने के लिए मैंने X, Y and Z चीजें वेरीफाई की और उसके बेसिस पे मेरा ये रिपोर्ट है. That is an agreed upon procedure. And finally is SRS 4410, which is compilation engagement. ये किस में काम आता है, जिन केसेस में ऑडिट नहीं लगता है, मे बी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही ऑडिट की, बट बैंकिंग पर्पस के लिए मुझे उसे एक रिपोर्ट देना है. बैंक बोलता है नहीं भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट लेके आइए जहां उसने बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से एकदम करंट नॉन करंट सब ठीक से करके दिया है. तो आप एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय यू बट इट इज नॉट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, then in those cases you can prepare a management for purpose a compilation, which can be a compilation of financial statements. You prepare the financial statement in that format and submit it to the management. That will be under the SRS 4410. तो आपने बैलेंस शीट बना दी, ऑडिट नहीं किया और रिपोर्ट एज पर कंपाइलेशन एंगेजमेंट दे दिया. सो ऑडिट, रिव्यू एंड कंपाइलेशन आर 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन गिव. ऑडिट नहीं आ रहा है, आप रिव्यू या कंपाइलेशन का रिपोर्ट भी दे सकते हैं. So for the question that was asked to me to cover in my PPT at the initial level, chairman had also asked unaudited financial statements. I very clearly mentioned there cannot be a concept where आप tally की balance sheet निकाल के ऊपर unaudited लिख दें और आपकी sign करें. That is not allowed. और provisional लिख दें नहीं चलेगा. आपको sign करना है तो as per report of even date. अगर auditable है तो audit report दीजिए. अगर compilation कर सकते हैं तो give a compilation report. If it is required for third party and a higher degree of assurance is required, issue a review report, because auditable नहीं है तो मैं review करके दे दूंगा. That is regarding the non-auditable entities जिसमें आपको provisional balance sheet देनी है. With regards to prospective financial information, we have already discussed SAE 3400, how you can certify, what has been the format, what has to be the process. Finally, a very important guidance note on report and certificate. I don't know how many of you are aware, but I will like to take you through in a couple of minutes through this before we move to the question answer session. This is a guidance note issued by ICAI, was revised in 2016. आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, छोटे से छोटा नेटवर्थ सर्टिफिकेट, टर्नओवर सर्टिफिकेट या कोई भी चीज का, अभी तक हम क्या कर रहे थे, because again this is what we learned maybe from our principal or somebody else, ऊपर लिख दिया to whomsoever it may concern, नीचे क्या लिखते हैं, this is to certify that based on the books of accounts of the company so and so. Very important guidance note का कैसे होना चाहिए. The first line certificate or report is given as per our engagement letter dated dash. तो आपके ऑफिस में आप engagement letter लेना शुरू कर देंगे, because engagement letter will become a habit in your organization because you will have to quote it for all certificates. It starts with that. Then there is management responsibility. काफी बार हम turnover certificate देते हैं और वो उसे लेके टेंडर के लिए अप्लाई करता है. Now in tender
you are not supposed to verify all other conditions. आपने तो सिर्फ टर्नओवर का सर्टिफिकेट दिया. How do you verify it? And second, other conditions you have not verified, that must be explicitly stated. If you look at the illustration under this guidance note, if you want, I can share my screen also and share this. Back. Let us all go through this. Illustration, practitioners रिपोर्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ एनुअल टर्नओवर. यानी अज्यूम करिए आपके किसी क्लाइंट का आप टर्नओवर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं या नेटवर्क का सर्टिफिकेट दे रहे हैं. दिस मस्ट बी द फॉर्मेट वी मस्ट ऑल फॉलो. द फर्स्ट पॉइंट डील्स विद द रिपोर्ट इज इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ आवर एंगेजमेंट लेटर डैश. सो आपका एंगेजमेंट लेटर यहाँ कोट हो गया. वाई इंपॉर्टेंट? कल उठ के वो बोलेगा क्लाइंट नहीं भैया सब सीए को ही देखना था. Then the engagement letter will say what was your responsibility, what was management's responsibility, and will be your savior. Therefore, important to quote it. Second, talks about आपने क्या देखा है. तो मैंने एनुअल टर्नओवर फलाना साल से फलाने साल का वेरीफाई किया है, वो यहाँ आता है. थर्ड इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया बैलेंस शीट बनाना और पीएनएल बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैनेजमेंट की. फोर्थ पढ़िए, अगर टेंडर के लिए आप दे रहे हैं तो टेंडर के सभी क्लॉजेस का कंप्लायंस भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फोर्थ में दिया है. अगर टेंडर के लिए नहीं है आप इसको निकाल दीजिए. प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने तो भैया मैंने क्या लिखा है, आप प्लीज रीड दिस. लॉट ऑफ पीपल आस्क यार मैंने क्या किया, बैलेंस शीट थी, टर्नओवर का फिगर लेके लिख दिया. अगर आप सर्टिफिकेट देंगे, इफ यू आर एबल टू इंप्रेस अपॉन योर क्लाइंट दैट दिस इज द वर्क आई एम डूइंग, आई एम सपोज्ड टू गिव यू अ रिपोर्ट एज पर माय गाइडेंस नोट, मुझे इसमें यूडिन लगता है, then one, he will appreciate the value of your certificate, and two, only then will you be able to realize value for the work you are doing. So practitioner's responsibility, you will have to here state भैया मैंने amount as per statement of annual turnover for the period ended so and so has been accurately extracted from the edited financial statements. यानी मैंने turnover उसके बैलेंस शीट में से लिया है. उसी तरह अगर आप और कुछ नेटवर्क सर्टिफाई कर रहे हैं तो उसका लिस्ट दीजिए. The sixth will be जो ऑडिट हुआ था उस बैलेंस शीट का, अगर आपने किया है तो ऑडिट का रिपोर्ट का डेट दीजिए. इफ डन बाय समबडी एल्स, प्लीज मेंशन दैट यू हैव रिलाइड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट डेटेड सो एंड सो. सेवेंथ टॉक्स अबाउट वी हैव कंडक्टेड आवर एग्जामिनेशन. ये ऑडिट नहीं है, सर्टिफिकेट इज एन एग्जामिनेशन एज पर दिस गाइडेंस नोट और एज पर दिस स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, बेनिफिट्स है, वो आपको मिल जाएंगे. एर्थ इज हमने SQC 1 को कंप्लाई किया है, जो हमने शुरू में समझा था SQC 1. फाइनली नाइन्थ इज योर ओपिनियन कि मेरे हिसाब से इसका करंट एसेट्स इतना है या इसका नेटवर्थ इतना है. एंड टेंथ इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज. ये सर्टिफिकेट आपने अगर हम टू whomsoever it में कंसर्न लिख के दे देते हैं, वो क्लाइंट न जाने कितने पर्पस के लिए उस सर्टिफिकेट को यूज करता है. बट इफ यू हैव क्लियरली मेंशन्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज, if except for example the tender some other party relies on it, you can very well say कि मेरा restriction of use था, ये आपके लिए था ही नहीं, आपने अगर इस पे